I have received some requests for uploading the contents of various presentations and whatever notes I have. So what I'll be doing is, if you've gone through Moodle, then I have already changed many of the topics in Moodle to different chapters, adhyay. So whatever presentations, notes, video recordings I have, I will be today, tomorrow, 2 days, I'll be putting it on Moodle so that you get a ready reference of which adhyay you want to go in, and you get a ready reference of a ready URL for the file. If you want to particularly study a particular adhyay, you can just click on the link and the file will open. So that is what I'm planning, so that even the Moodle becomes a little bit uh, organized. Okay, so today what we are going to do is, how many people are there? There are 23. So anyway, because this is revision, we don't stop for a long time, because I plan to complete Matra Shiti Adhyay at least today or maximum by Monday, the revision, so that by Tuesday again we can have some seminars. Wednesday, not Tuesday. So I'll be posting the content of the seminars today, and the roll numbers also in the seminar content of our regular file, so that you can continue with the seminars. I hope the last seminar has already shown how a seminar should be. It should have a Ayurvedic aspect and it should have a current aspect. That is the main focus. Unless and until हमारे जैसे लोग आयुर्वेद को आज के लाइफस्टाइल में ढालने का कोशिश नहीं करेंगे, आयुर्वेद इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस. आयुर्वेद इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस. हम वही पीछे 10,000 साल पीछे वाली चीज में रह जाएंगे, घोड़े पे चढ़ना, इस पे होना, उस पे होना. तो उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला. चाइनीज इज समथिंग विच वॉज नेवर देयर इन 10,000 years बैक, बट टुडे 10% of our food has become Chinese. So we should understand what is Chinese. आम्ल है, तीक्ष्ण है, क्या है. So similarly, we should be able to correlate. Otherwise, things are not going to go well in today's times. Ayurveda has remained behind for a lot of time and will remain behind for a lot of time. Okay, so let us start with Matra Shiti Adhyay. Anyway, we have 30 participants now. What has been discussed in Matra Shiti Adhyay is आहार मात्रा और उसके दोष. So how much of the quantity of food you should take? What happens when you take low quantity? What happens when you take more quantity? Okay, then alasak, visuchika, amadosh and dosha samsarga with amadosh. So if you take food in more quantity, you get diseases like alasak, visuchika, basically amadosh, because both of the diseases are caused by am. And what happens when there is dosha samsarga? The dosha starts mixing with the amadosh. Then we talk about ajirna. अजीर्ण मतलब खाना खाया हुआ नहीं पचना. It is not as dangerous or as severe as alasaka or visuchika, but yes, ajirna also is a state in which the food is not properly digested. Then we talk about dushta anna. What foods? Matra we have already talked about in the first point. Dushta anna is what foods we have to take and we have to avoid. So dushta anna is all the foods which we have to avoid. Then we come to ahar grahan vidhi. Now what is ahar grahan vidhi? Ahar grahan vidhi is how you should eat. कैसे खाना चाहिए. ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए, गरम गरम खाना चाहिए, स्निग्ध खाना चाहिए, बिना हंसे बिना बात किए खाना चाहिए, फिर साफ सुथरे बर्तनों में खाना चाहिए. ऑल दीज आर आहार ग्रहण विधि. सो आहार से रिलेटेड आयुर्वेद हैज थ्री थिंग्स. वन इज आहार परिणाम कर भाव. आहार परिणाम कर भाव, that is all which is related to the making of ahar. Then we have ahar vidhi vishesh, and then we have ahar grahan vidhi. So ahar vidhi vishesh is some part of cooking and some part of eating.
and ahar grahan is totally related to eating. Then the last point which we are going to discuss here is anupan. Anupan is what drinks or what food should be consumed with what food to get the better benefit of food. ठीक है, जैसे खाने के बाद हमको पानी नहीं पीना चाहिए, या खाने के बाद हमको सौंफ खानी चाहिए, वरियाली सौंफ खानी चाहिए, तो दिस इज अनुपान, कि खाने के साथ क्या लेना चाहिए या खाने के बाद। अनुपश्चात पानम अनुपान मतलब एक चीज को लेने के बाद दूसरी चीज लेना, ये अनुपान है। अनुपान इज द थिंग विच यू टेक इमीडिएटली आफ्टर वन थिंग। ओके, तो आपने दोपहर को खाना खाया, शाम को चाय पी, दैट इज नॉट अनुपान। लेकिन आपने गोली ली और गर्म पानी के साथ ली, तो दैट इज अनुपान। ओके, तो इट इज द ऑर्डर इन विच यू पुट फूड्स इन योर माउथ, what food you are putting or what drink you are drinking after a particular thing, after a particular food, that is anupan. So we'll be learning about anupan also in this chapter. If you see, this chapter is more focused on ahar, that is why it is known as matra ashitiya adhyay. Matra is ahar matra, and ashitiya means some things which you should not do while eating food, or some things which you should not eat, अशीतीय। ओके, आहार कैसे लेना चाहिए? उनका कहना है कि मात्रावत आहार लेना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि का प्रवर्तन करता है। अब पेट में जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको क्या बोला गया है? उनको अग्नि बोला गया है। क्यों? बिकॉज वो चीज़ों को पचाते हैं, दे डाइजेस्ट फूड, दे ट्रांसफॉर्म फूड इनटू बॉडी फेवरेबल, बॉडी एसिमिलेबल सब्सटेंसेस। तो इसीलिए डाइजेस्टिव जूसेस जो भी हैं उनको अग्नि कहा गया है। अग्नि का मैंने एक और उदाहरण दिया था आपको, कि जैसे डीएनए जब लैब में बनता है तो 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लगता है, जबकि डीएनए, वही डीएनए आपके बॉडी में बनता है तो आपके बॉडी में वो 36 डिग्रीज या 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे बन जाता है। तो व्हाई इज दिस सो मच अ डिफरेंस? दैट इज बिकॉज अग्नि और ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन बाय, वन इज मैकेनिकल अग्नि जो हमारे चमड़ी को लगता है, विच वी कैन फील, one is chemical agni. So our body is more focused or more um, or uses this chemical part of the agni more. So what happens in our body are chemical reactions, and that is why this transformation through chemistry is also correlated with agni. तो अग्नि में जैसे जैसे आप थोड़ा 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 डालते जाओ, आपने एक यज्ञ जमा लिया, यज्ञ जमाने के बाद उसमें 2 किलो घी एक साथ डाल दिया, तो क्या होगा? वो आग बुझ जाएगी। जबकि वही घी अगर आपने थोड़ा थोड़ा प्रमाण में डाला तो आग जलती रहेगी। तो इसीलिए मात्रावत आहार लेना जरूरी है, क्योंकि ये अग्नि को प्रवर्तन करता है। आहार की मात्रा कैसे डिसाइड करते हैं? आहार की मात्रा डिसाइड करते हैं गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य से। गुरु द्रव्य मतलब जो पचने में भारी है, लघु द्रव्य मतलब जो पचने में इजी है। तो इन दो चीजों से आहार की मात्रा नापते हैं। तो गुरु द्रव्यों को कितना लेना चाहिए और लघु द्रव्यों को कितना लेना चाहिए? उनका कहना यह है कि तृप्ति से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तृप्ति मतलब सेशिएटी। सेशिएटी इज, और इंडियन इंग्लिश में जैसी जिसको आप सटाइटी बोलते हैं, सटाइटी एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन सेशिएटी है। तो सेशिएटी इज व्हाट? सेशिएटी इज व्हेन यू फील फुल, कि ठीक है अब मेरा पेट भर गया, दैट इज तृप्ति। तो गुरु द्रव्यों को कितना लेना चाहिए? अर्ध तृप्ति तक, आधा पेट भरने तक गुरु द्रव्य लेने चाहिए। और लघु द्रव्यों को कितना लेना चाहिए? लघु द्रव्यों को तृप्ति तक लेना चाहिए। तृप्ति से ज़्यादा भोजन, जितना प्रमाण है उससे ज़्यादा कभी भी खाना नहीं चाहिए। मात्रा आहार लेने से क्या होता है? अग्नि ठीक से प्रवर्तित हो जाती है और आहार या खाना उत्तम रूप से पच जाता है। अल्प मात्रा में आहार लेंगे अगर हम, जितना हमारे शरीर को ज़रूरी है उससे अल्प मात्रा में लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, फॉर अ पर्सन ऑफ योर एज, अराउंड 1700 कैलोरीज डेली आर रिक्वायर्ड विथ अ
1700 कैलोरीज, मतलब ये तो कैलोरी पे हो गया. बट again we have to divide it into the carbohydrate content, the protein content and the fat content. Then we have to add vitamins and minerals. तो ये सब, see, they did not know carbohydrate, they did not know protein, तो इन्होंने सिर्फ मात्रा कैलोरीज के हिसाब से या सेशियटी के हिसाब से मानी है. But right now, science has progressed so much, and that is nutritional science. So science is never a part or um, never possessed by any one field. So जो एलोपैथी में है वही आयुर्वेद में चलेगा. तो इसीलिए अल्प मात्रा में अगर हम खाना लेते हैं, एक बार लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रेगुलर अगर ले रहे हैं तो बल और ओज का नाश करता है. अल्प मात्रा बल और ओज का नाश करता है. अति मात्रा में लेंगे तो सबसे पहले खाना पचेगा ही नहीं. पचेगा नहीं तो आहार रस अपाचित रह जाएगा, उसका आम हो जाएगा. याद है, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु मध्यम अपाचितम दुष्टम आमाशयगसम रसम आमम प्रचक्षते. तो ये अपाचित आहार रस जो है वही आम है. तो अति मात्रा में आम प्रकुपित हो जाएगा, चैनल्स को ब्लॉक करेगा, दोषों को प्रकुपित कर देगा और दोषों का वर्धन कर देगा. तो आहार हमेशा इसीलिए मात्रावत लेना चाहिए. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मात्रावत आहार क्यों लेना चाहिए, उसके फायदे क्या है. तो ये स्लाइड आपको लिखनी है. उसके बाद उन्होंने आम से उत्पन्न होने वाले सीवियर डिसीजेस का वर्णन किया. तो उसमें दो डिसीजेस उन्होंने बताए हैं, एक अलसक और एक विसूचिका. अब अलसक और विसूचिका में क्या अंतर है. तो अलसक इज व्हेन देयर इज पेरिस्टाल्सिस लॉस और विसूचिका इज व्हेन यू हैव इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस. तो अलसक में पेरिस्टाल्सिस लॉस हो जाता है और विसूचिका में पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाता है. पेरिस्टाल्सिस इज व्हाट एवरीबॉडी नोज, इट इज द मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. तो अलसक में क्यों होता है, आहार अधिक लेने से होता है. क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता नहीं है तो आहार महास्रोतस में पड़ा पड़ा रह जाता है. ना तो उल्टी आती है ना तो मल रूप में बाहर निकलता है. यह आहार वहीं पड़े पड़े, कोई भी चीज एक जगह पर ज्यादा देर तक रह जाएगी तो क्या होता है, सड़ने लगती है. पानी भी जब एक जगह ज्यादा देर ठहर जाता है तो उस पे कई आने लगती है. कई मतलब मॉस, फंगस आना चालू हो जाता है. तो इसीलिए तो हम टोकरी में फल भी रखते हैं तो नीचे के फल ऊपर करते हैं, ऊपर के फल नीचे करते हैं, क्योंकि एक जगह कोई भी फल रह गया तो वो भी खराब हो जाता है. तो सिमिलरली आहार भी अगर पेरिस्टाल्सिस लॉस की वजह से पड़ा हुआ रहता है तो अलसक हो जाता है या आम उत्पन्न हो जाता है. आलसी आदमी के जैसे वो रुक जाता है. इसमें दोष प्रकुपित होते हैं. आम जैसे ही आ जाता है तो दोष प्रकुपित हो जाते हैं और आम के साथ विलीन हो जाते हैं. दोषों का उत्पत्ति स्थान क्या है, अगर आप देखोगे तो दोषों का उत्पत्ति स्थान महास्रोतस है. दोष काम सब जगह करते हैं लेकिन महास्रोतस में उत्पन्न होते हैं. कहाँ कहाँ होते हैं, आमाशय में कफ, पक्वाशय में वात और ग्रहणी और अग्न्याशय में पित्त. तो इसीलिए दोष प्रकुपित होके आम के साथ विलीन हो जाते हैं, विलीन होके आहार की गति को रोक देते हैं. और इससे क्या होता है, आदमी दुर्बल हो जाता है. और अलसक बेसिकली होता किसको है, अलसक उसको होता है जो दुर्बल है. दुर्बल मतलब हिज मसल्स आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. सिमिलर इज द केस विद एब्डोमिनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मसल्स. या फिर जिसमें मंदाग्नि है, अग्नि मंद है, उसमें भी अलसक हो सकता है. या फिर जिसने वेगावरोध किया है या वेगावरोध करने वाला है उसमें भी अलसक हो सकता है. तो दीज आर द पीपल होम अलसक हैपन्स इजीली. अलसक का एक और प्रकार उन्होंने बताया है, दंडालसक. दंडालसक इसमें क्या होता है, ये अलसक का प्रकार है.
इसमें क्या होता है, आहार पड़ा पड़ा रहता है। आहार जब इंटेस्टाइन्स में या आमाशय में पड़ा रहता है, तो इसमें से जो टॉक्सिन्स है, इसमें जो जो शरीर को डैमेज करने वाली चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना चालू हो जाती है। तो शरीर में तिर्यकगामी हो जाता है। दैट मीन्स it has left the gastrointestinal tract and it has gone to the rest parts of the body. Now, when this ahar toxins is circulated by blood around the body, blood बेचारे को पता नहीं, वो तो बेचारा जो भी है वो एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है। तो एब्जॉर्ब करके जब शरीर में तिर्यकगामी ले जाता है, संधियों में, अस्थियों में, अलग अलग धातुओं में ले जाता है, तो ये जो टॉक्सिन्स है, ये जो आम है, ये वहाँ डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। सर्व रसवाही स्रोतों से सर्व शरीर में फैल जाता है। अब यहाँ पर रसवाही क्यों बोला है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द सीरम, नॉट द हीमोपोएटिक सिस्टम। तो सीरम एंड लिम्फ आर रसवाही। तो रसवाही में से सर्व शरीर में फैल जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और मसल्स में, बोन्स में, संधियों में कैच उत्पन्न करता है या स्टिफनेस उत्पन्न करता है। पूरा शरीर धीरे धीरे दंड के समान, दंड मतलब लकड़ी, बड़ा लकड़ी जो हम चलने को यूज करते हैं, वो लकड़ी नहीं जो बूढ़े पकड़ते हैं, जो गांव के मुखिया उखिया लोग पकड़ते हैं ना, हाइट का लकड़ी, वैसे दंड के समान जकड़न उत्पन्न करता है। दंडालसक जो है वो आशुकारी है और दुष्चिकित्स्य होता है। आशुकारी मतलब तुरंत नुकसान करने वाला, दुष्चिकित्सा मतलब जिसकी चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती या चिकित्सा बहुत ही डिफिकल्ट होती है। सो दिस इज दंडालसक। उसके बाद आम विष का वर्णन किया है। आम विष का मतलब क्या है कि आहार में आम की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वह पूरी तरह सड़ जाता है और उससे विष रूप उत्पन्न हो जाता है। द होल ऑफ द डाइट विच यू हैव टेकन gets transformed into a lot of toxins, and that is why they act as a poison. ओके, विष की चिकित्सा और आम की चिकित्सा विरुद्ध है। विष की चिकित्सा में क्या देना है? विष जो है वो शीत गुण वाला है, तो उसमें उष्ण गुण वाला है, तो उसमें शीत चिकित्सा देनी है। और आम जो है वो शीत गुण वाला है, तो उसमें उष्ण चिकित्सा देनी है। तो जब आम विष हो जाता है तो चिकित्सा विरोध हो जाता है। मतलब अगर शीत चिकित्सा दोगे तो आम बढ़ जाएगा, आम बढ़ जाएगा तो विष बढ़ जाएगा। अगर उष्ण चिकित्सा दोगे तो विष बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली कोई भी चिकित्सा दोगे तो विष तो बढ़ना ही है। तो इसीलिए ये दुष्चिकित्सा है। अगर चिकित्सा कोशिश करने की कोशिश भी करें तो विपरीत प्रभाव होता है। विपरीत प्रभाव मतलब अल्टीमेटली यू आर ट्रीटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, however the condition of the patient starts getting worse and you don't understand why the patient's condition is getting worse when I am doing the right treatment. तो इसीलिए आम विष मतलब आम प्रकोपित हो गया, दोष एक साथ हो गए, और आम तिर्यकगामी हो गया। उसके साथ ही साथ आम जो है वो ज़्यादा रूप से सड़ने लगा, और आम ज़्यादा सड़ने लगा तो उससे टॉक्सिन ज़्यादा उत्पन्न हो गए। ये दुष्चिकित्सा है क्योंकि चिकित्सा विरोधी है। आम में ट्रीटमेंट करोगे तो विष बढ़ जाएगा, और विष के ट्रीटमेंट करोगे तो आम बढ़ जाएगा, आम बढ़ने से वापस विष बढ़ जाएगा। इसके बाद आता है विसूचिका। नाउ विसूचिका इज अ डिसीज इन विच द पेरिस्टाल्सिस हैज इंक्रीज। अलसक में जो आम बना हुआ है वो एक ही जगह पड़ा पड़ा सड़ते रहता है, आलसी व्यक्ति की जैसा एक ही जगह पड़ा रहता है। जबकि विसूचिका में यह आम जो आता है ये शरीर से शरीर बाहर फेंकने का कोशिश करता है। तो विसूचिका भी अधिक आहार लेने से, मात्रा से ज्यादा आहार लेने से विसूचिका उत्पन्न होती है। सेम इसकी संप्राप्ति है आहार के साथ दोष प्रकुपित होके, उत्क्लेशित होके छर्दी और मल रूप में निकलते रहते हैं। छर्दी और मल रूप में निकलते रहते हैं। तो विसूचिका में यू हैव vomiting also, and विसूचिका में you have motions, लूज मोशंस also। तो ये विसूचिका है। साथ ही साथ कुछ पार्ट आम जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है,
और शरीर में अलग अलग जाके, अलग अलग जगह जाके सुई चुभने जैसी वेदना निर्माण करता है। ट्विचिंग सेंसेशन और प्रिकिंग सेंसेशन, ज़्यादा करके ये सेंसेशन जो है ये संधियों में देखने को मिलता है, हड्डियों में और मांसपेशियों में देखने को मिलता है। तो शरीर में सुई चुभने जैसी वेदना करता है। अगर विसूचिका में वात प्रकोपित है तो जो मोशन निकलेगा वो शूल के साथ, आनाह के साथ, स्तंभ के साथ निकलेगा। साथ ही साथ भ्रम और कंप भी ऐसे लक्षण दिखेंगे। अगर पित्त प्रकोपित ज़्यादा हुआ तो ज्वर होगा, फीवर, अंतर्दाह मतलब एसिडिटी या जिसको हम बर्निंग सेंसेशन बोल सकते हैं, अतिसार, लॉट ऑफ लूज मोशन, क्षुधा तृषा दैट इज भूख लगने जैसी और प्यास लगने जैसी संवेदना होगी। प्यास लगने जैसी क्यों होगी? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर यू आर लूजिंग फ्रॉम छर्दी एंड लूज मोशंस, तो इसीलिए प्यास ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा क्यों लगती है? क्योंकि पित्त प्रकुपित हो गया, तो अग्नि प्रकुपित हो गया। Now what is the difference between a समाग्नि and a तीक्ष्णाग्नि? तीक्ष्णाग्नि में भी जो डालते हैं वो भी पच जाता है और समाग्नि में भी जो डालते हैं वो पच जाता है। फर्क ये है कि समाग्नि इज अ कंट्रोल्ड फायर, whereas तीक्ष्णाग्नि इज एन अनकंट्रोल्ड फायर। समाग्नि को आप सबमिट कर आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तीक्ष्णाग्नि को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो यज्ञ कुंड में होती है वो समाग्नि जैसे होती है, लेकिन जो घर जला देने वाली होती है वो तीक्ष्णाग्नि जैसी होती है। अग्नि दोनों इसमें प्रकोपित होता है, या प्रकोपित मतलब अग्नि दोनों इसमें ज्यादा होता है, लेकिन एक जो है वो कंट्रोल्ड है और एक जो है वो अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। तो इसीलिए पित्त प्रकोप के बाद भी जो क्षुधा लगती है उसमें अग्नि प्रकोपित हुआ होता है, दैट इज अनकंट्रोल्ड अग्नि। ठीक है, दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट इन द वाइवा एंड गेट गुड मार्क्स। उसके बाद अगर कफ प्रकोपित हो जाता है तो कफ प्रकोप होने की वजह से क्या होता है? वमन ज्यादा होता है, गौरव ज्यादा, बिकॉज कफ का कहाँ है? आमाशय में। तो आमाशय में पड़ा पड़ा कफ के साथ मिक्स हो गया और पेरिस्टालसिस ज्यादा है, तो नियरेस्ट रूट कौन सा है? मुंह है, तो मुंह से वमन होगा। वही पित्त में, पित्त इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द अग्न्याशय। तो पित्त से प्रकोपित हो गया या पित्त उसमें मिक्स हो गया आम में, तो वो नियरेस्ट रूट कौन सा है? नियरेस्ट रूट इज द रेक्टम, तो इसीलिए अतिसार से निकलेगा। वाक संग हो जाता है कफ में। वाक संग इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। साथ ही साथ बहुत सारा लालास्राव होता है। लालास्राव का मतलब सलाइवेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट विसूचिका। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज आम दोष की चिकित्सा। अब आम दोष और आम विष, इसमें फर्क है। आम दोष मतलब जब आम इतने मात्रा में बढ़ा हुआ है कि विष उत्पन्न नहीं हुआ, आप उसकी चिकित्सा जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो आम दोष की चिकित्सा में उन्होंने क्या कहा है? देखो, आम दोष में उन्होंने कहा है कि कोई भी औषधि उपचार, पॉइंट नंबर 3, कोई भी औषधि उपचार फल नहीं देता, क्योंकि आयुर्वेद में जितनी भी औषधियां हैं उसमें अग्नि संस्कार अपेक्षित है। आयुर्वेद में इंजेक्शंस क्यों नहीं बोले? why there are no injections in ayurveda? Because injections are things in which there is no जाठराग्नि संस्कार। जाठराग्नि संस्कार नहीं होता, मेटाबोलाइट्स उसके नहीं होते, वो डायरेक्टली जाके सेल्यूलर लेवल पे काम नहीं कर सकते, बिकॉज मेटाबोलाइट्स नहीं होते। What are metabolites? Metabolites are reactants, sorry, metabolites are end products of a reaction. That is metabolite. Where are the majority metabolites prepared? The majority metabolites are prepared in the liver. और इसीलिए कहा जाता है कि लिवर के मोर देन 500 काम है, जिसमें से शायद हमको 30-40 काम सिर्फ पता है। तो औषधि उपचार काम नहीं करता क्योंकि अग्नि मंद है, तो औषधि पे अग्नि के संस्कार ही नहीं होंगे।
सम नहीं है अग्नि, तो औषधि के संस्कार नहीं होंगे, और रादर औषधि देने पे औषधि का भी आम बन जाता है, औषधि भी पचती नहीं है और उसका भी आम बन जाता है। तो इसीलिए आम दोष की चिकित्सा में पंचकर्म एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि पंचकर्म में मदन फल जैसे, त्रिवृत्त जैसे, स्नूही जैसे, दंती द्रवंती जैसे जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं, उनको अग्नि की अपेक्षा नहीं होती। जब आप थर्ड ईयर में सिद्धि स्थान पढ़ोगे चरक का, तो उसमें मदन फल कल्प अध्याय में लिखा हुआ है कि ये जो ड्रग्स हैं इनको अग्नि पाचन की अपेक्षा नहीं होती, ये बिना अग्नि पाचन के भी काम कर लेते हैं। तो इसीलिए आम दोष की चिकित्सा में शीघ्रतः पंचकर्म करना, उसमें भी वमन और विरेचन करना एक्सपेक्टेड है। अब वमन और विरेचन आप करोगे तो कब करोगे, किसको वमन दोगे और किसको विरेचन दोगे? तो जिसका कफ बढ़ा हुआ है उसको, या कफ जिसके आम के साथ विलीन है, मिक्स हुआ है, उसको आप विरेचन दोगे, बिकॉज द नियरेस्ट, सॉरी, वमन दोगे बिकॉज द नियरेस्ट रूट इज द माउथ। जबकि अगर पित्त बढ़ा हुआ है या वात बढ़ा हुआ है, तब उसको आप विरेचन दोगे या अनुलोमन दोगे। अनुलोमन मतलब मृदु विरेचन, एकदम हल्का विरेचन दिया जाता है, जिसमें लिक्विड स्टूल तो होते हैं लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ एक ही स्टूल होके ख़त्म हो जाता है। जबकि विरेचन में 7 से 10 स्टूल होते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विरेचन एंड अनुलोमन। अनुलोमन में किसी किसी को स्टूल होता ही नहीं है, लेकिन गैस बहुत पास होती है, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अनुलोमन। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आम दोष है तो स्वेदन देना चाहिए। अब ये स्वेदन कहाँ देना चाहिए? पेट में देना चाहिए, बिकॉज आम दोष कहाँ पर है? पेट में। तो पेट में स्वेदन देने से थोड़े बहुत डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ जाते हैं, और जो आम अपाचित रह गया है, जो अन्न अपाचित रह गया है, उसको वो बेनिफिट करते हैं। लास्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है कि अल्प अगर दोष प्रकोप हो तो लंघन करना चाहिए, मध्यम बल में दोष प्रकोप हो तो लंघन और पाचन दोनों करने चाहिए, और अगर तीव्र रूप में दोष प्रकोप हो तो शोधन करना चाहिए। So we have 10 minutes left. What I'll be doing is I'll be giving you the chat link in the chat box. Kindly give your attendance. And if anybody has not done the attendance, kindly let me know. Okay. तो ये आम दोष की चिकित्सा हुई। अब हम चलते हैं विसूचिका की चिकित्सा में। विसूचिका में कुछ स्पेशल चिकित्सा उन्होंने बताई है, जैसे पार्ष्णी दाह। पार्ष्णी मतलब एडी, एडी, द बैक पोर्शन ऑफ योर फुट। तो पार्ष्णी में चटका देना विसूचिका की चिकित्सा बताइए। इसका क्या रीजन है, कैसे एक्ट करता है? प्रॉब्ली कोई एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की थियरी होगी, लेकिन पार्ष्णी दाह जो है दैट इज वन ऑफ द मेजर चिकित्सा इन विसूचिका। ठीक है, बहुत बहुत साल पहले, मेरा हिस्ट्री बहुत वीक है तो आई डोंट नो द ईयर, बहुत बहुत साल पहले एक बार कॉलेरा का एपिडेमिक आया था इंडिया में, तो पार्ष्णी दाह से बहुत लोगों को आराम हुआ। लंघन, लंघन मतलब खाना नहीं खाना, बहुत ही कम खाना खाना या बिल्कुल भी खाना नहीं खाना। लंघन होने से क्या हो जाता है कि जो अपाचित आम है उसमें जो नए डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड राइट इन द फर्स्ट मॉर्सेल, पहला निवाला लेते ही डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होना चालू हो जाते हैं। इसीलिए जब हम पहला, भूख नहीं लगी है मम्मी, भूख नहीं लगी, लेकिन जैसे ही एक दो निवाले खा लो मम्मी बहुत जोर से भूख लगी। उसका कारण ये है कि जैसे ही हम पहला निवाला खा लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करना चालू कर देता है पूरे जोर शोर में। तो जो भी एक्सेस डाइजेस्टिव जूसेस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो जाके आम को डाइजेस्ट करते हैं, इसीलिए लंघन देने का विधान है। उसके बाद विरिक्त जैसे उपचार, मतलब जिसको विरेचन दिया गया हो वैसे उपचार करने चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? संसर्जन क्रम करना चाहिए।
पेया विलेपी, मंड पेया विलेपी, कृत अकृत यूष कृत यूष, अकृत मांसरस कृत मांसरस और ओदन। तो अगर विरक्त आदमी जैसे आपने ये कर दिया, उपचार किए, तो अग्नि धीरे 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 बढ़ना चालू हो जाता है। और पाचन के पूर्ण होने पर जब आम के सभी लक्षण निकल जाते हैं, तब आपको औषधि देनी चाहिए कि अब हमारी औषधि जो है वो पच के एक्ट कर पाएगी। तो इसीलिए दीपन औषधि देने का विधान है। दीपन मतलब अग्नि को बढ़ाने वाली, पाचन मतलब पचन को बढ़ाने वाली। अब हम चलते हैं अजीर्ण पे। अजीर्ण क्या है? तो अजीर्ण में क्या क्या लक्षण होते हैं? मलस्तंभ, मतलब ठीक तरह से मोशंस नहीं होते, या द्रवमल, मलस्तंभ या द्रवमल, ठीक तरह से मोशंस नहीं हो पाते। और वातावरोध, गैस पास नहीं होता, पेट में भरा भरा लगता है, द एब्डोमेन इज ब्लोटेड। उसके बाद ग्लानि और गौरव। ग्लानि क्यों आती है? क्योंकि आहार पचा नहीं है, तो यू आर नॉट गेटिंग द सेम न्यूट्रिशन, इसीलिए ग्लानि आ जाती है। और गौरव क्यों लेता है? क्योंकि आहार पचा नहीं है, पेट भारी भारी लगता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अजीर्ण, जिसमें मलस्तंभ, द्रवमल, वातावरोध, गौरव और ग्लानि आती है। अजीर्ण के कारण क्या क्या हैं? अजीर्ण के कारण में उन्होंने दिया है कि अधिक भोजन या द्विष्ट भोजन। द्विष्ट भोजन मतलब जो आहार पसंद नहीं है। अब कल को आपको पालक की सब्जी सुबह दोपहर रात दी जाए तो द्विष्ट भोजन हो जाता है। विदाही भोजन, विदाही भोजन मतलब ऐसा भोजन जो या तो सड़ा गला है, या फिर सड़ा गला से भी ज़्यादा, या फिर एक दिन बासी है, या जिसको वापस गर्म किया हुआ है, या जिसको इतना सेका गया है या इतना रोस्ट किया गया है कि वो जल गया है, दैट इज विदाही अन्न। और विष्टम्भी आहार लेना, विष्टम्भी आहार मतलब जिससे पेरिस्टालसिस कम हो जाता है। रुक्ष आहार लेना या क्लिन्न आहार लेना। रुक्ष मतलब रूखा, जो पेरिस्टालसिस से भी आगे नहीं जाए, और क्लिन्न मतलब गीला या चिकना या चिपका हुआ, जो पेरिस्टालसिस होते हुए भी इंटेस्टिनल वॉल्स को चिपका रहे। अजीर्ण गुरु और शीत अन्न से लेने से भी हो सकता है। अजीर्ण के और कारण क्या है? भोजनोत्तर जलपान, इसीलिए क्या कहा गया है? अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। भोजन के बाद पानी पीना विष के जैसा है, और अजीर्ण में गर्म पानी पीना औषध के जैसा है। तो भोजनोत्तर जलपान करने वालों को भी अजीर्ण हो जाता है, या भूख मार के अगर बाद में आप भोजन करो तब भी अजीर्ण हो जाता है। इसीलिए क्षुधा को वेग माना हुआ है। भूख कब लगती है? जब हमारा ग्लूकोज लेवल ब्लड में डाउन हो जाता है। तो आपने उस भूख को मार लिया, मार लिया तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड द मसल सेल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो फॉर द टाइम बिंग आपको ग्लूकोज मिल जाता है, लेकिन आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो एक सर्केडियन रिदम, एक बायोलॉजिकल क्लॉक से ये होते हैं। इसीलिए हम को 8 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना, 7 बजे रात का खाना, ऐसे करने का विधान है, बिकॉज दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लॉक विच हैज सेट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो डाइजेस्टिव जूसेस चले जाते हैं, नहीं है भाई, खाना नहीं आया। दो लोग गए थे आगे देखने के लिए, लेकिन खाना नहीं आया। तो खाना नहीं आया तो डाइजेस्टिव जूसेस खुद को रोक लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं वापस। और इसीलिए बहुत समय तक भूख मार के बाद में अगर तीव्र मतलब गुरु खाना लिया जाए, या बेसिकली मात्रावत खाना नहीं लिया जाए, तब दोनों मतलब सब डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं
वो तो है ही नहीं, काम नहीं कर रहे। तो काम नहीं कर रहे तो खाना पचा पचा सड़ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि क्रोध आदि के साथ अगर भोजन किया जाए तब भी अजीर्ण हो सकता है। ना भोजन कैसे करना चाहिए? भोजन करना चाहिए खुशी वाले मन से। जब मन में खुशी हो तो भोजन अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए खुश मन से करना चाहिए। और क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो षड रिपु बताए हैं, इनको दूर रखना चाहिए, उनको अपने साथ नहीं रखना चाहिए। खाना खाते वक्त पूरा फोकस खाने पे होना चाहिए, ना कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर पे। तो दिस इज हाउ वी शुड ईट फूड, एंड दिस इज हाउ वाई वी गेट अजीर्ण। अब अजीर्ण के विशेष लक्षण जो हैं, 4 या 5 स्लाइड बची हुई हैं, विच वी विल टेक नेक्स्ट टाइम। और अब के लिए मैं सेमिनार के कंटेंट्स पोस्ट कर दूंगा। वी विल टेक सेमिनार फ्रॉम वेनेसडे ऑनवर्ड्स फॉर 1 वीक। अगर ये खत्म हो गया होगा तो आई विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे।